Since the time the Common Universities Entrance Test CUET has been announced, one of the most important questions I'm coming across is about the reservation policies. Will CUET impact the reservation policy? And especially from TU perspective, what happens to the reservation policies by Delhi University? What about sports quota? What about extracurricular activities? Will that remain, or everything is now based on CUET? While I'll talk about this in the video today, but before that, I would like to share a very important update coming from the CUET front. One of the biggest central universities will only be offering 10 programs under CUET. Jamia Millia Islamia, which is based out of New Delhi, will be offering only 10 courses for admissions through the Common University Entrance Test, while Jamia Millia Islamia offers 60 undergraduate programs. But in a meeting held yesterday with the UGC officials, wherein the academic council members of the Jamia Millia Islamia were present, it was agreed that 10 courses of Jamia Millia Islamia will be part of CUET. Among these 10 courses, 7 are from humanities segment, 2 from sciences, and 1 from vocation. The courses from humanities include BA Honors Hindi, BA Honors Sanskrit, Bachelor of Arts in French, Spanish, Turkish languages. These 3 languages will be covered. Apart from this, economics and history honors programs admissions will be done through CUET. For the sciences, only 2 courses will be part of CUET. The first one being BSc Honors Physics, and the second one is BSc Biotechnology. From the vocation segment, VWalk Solar Energy course will only be present in CUET, or the admissions to this program will be done through CUET. It is important that students, when they are applying for CUET for admissions to Jamia for these courses, they also need to apply for these courses on Jamia website as well. So that was the big update. And now we move on to what we are going to cover in this video. हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। सीयूईटी का कोई इंपैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? सो लेट्स लुक एट इट। एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली कोई चेंजेस हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड CUET will have no impact as far as reservation policies of the central universities are concerned. Yes, for some of the colleges, which are minority community based colleges, the process is going to be different. So let's look at one by one what happens to each of the category. अगर हम schedule caste category की बात करें, so 15% of the seats will be reserved for students belonging to this category. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट उनके नाम से होना चाहिए। बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैं वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता हूं जिसमें मेरे पेरेंट्स के नेम मेंशन है? नो, द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इन योर नेम, इट शुड हैव द रेसिडेंस मेंशन, एंड इट शुड बी यू शुड इंश्योर कि जो कास्ट आपका है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एप्रोप्रिएट शेड्यूल्ड में मेंशन्ड है एज बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, 7.5%, 7.5% सीट्स जो होंगी कॉलेजेस में वो रिजर्व्ड होंगी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सर्टिफिकेट आपके नाम से होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के टाइम पे ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है वो ओबीसी क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओबीसी कैटेगरी होता है उसमें रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है,
or 27% of the total seats in any program except for the minority colleges will be reserved for candidates belonging to the non-creamy layer other backward classes. अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, बट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए होना चाहिए और वो इशू होना चाहिए 31 मार्च 2022 या उसके बाद। मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी नया बनना है या आपने बनवा लिया होगा, बट इंश्योर ये करना है कि वो 31 मार्च 2022 या उसके बाद बना हो, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड है उसी लाइंस पे रहेगा। 10% जो सीट्स होंगी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। ये जो सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी सीट्स के संदर्भ में कार्व आउट की जाती हैं, वहां से निकाली जाती हैं। 10% सीट्स रिजर्व होती हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया फिलहाल जो 8 लाख रुपीस है, जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, उस क्राइटेरिया अगर वो चेंज होता है तो वो आपको देखना होगा, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट भी रिसेंट होना चाहिए। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर इनटेक जहां पे अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसके अलावा बहुत सारी सुपर न्यूमररी सीट्स होती हैं। अब ये कौन सी सीट्स हैं? ये जो सुपर न्यूमररी सीट्स होती हैं ये ओवर एंड अबव द रेगुलर इनटेक होती है। 5%, 3% जो भी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। जो वन ऑफ द सुपर न्यूमररी सीट्स इट्स अबाउट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बोलते हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए 5% अप टू 5% सीट्स जो होती हैं वो सुपर न्यूमररी सीट्स के तौर पे अलग से प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री, उनके बच्चों और विडोज के लिए भी सीट अवेलेबल होती है। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स पे काफी फोकस होता है, एंड टू इनकरेज ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स की अलग रिजर्वेशन होती है और ये कंटिन्यू रहेंगी। 25% जो वेटेज होगा वो सीयूईटी स्कोर्स को जाएगा और 75% क्राइटेरिया होगा वो यूनिवर्सिटी डिफाइन करेगी, जैसे पहले ट्रायल्स के थ्रू होता था। अगर हम बाकी सुपर न्यूमररी सीट्स की बात करें तो उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर जिनको मिला है वो एलिजिबल हैं, जो सिक्किम के नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए, उनके वार्ड के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। सो ये बहुत सारी सुपर न्यूमररी सीट्स हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, जिसमें 2 क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, सेंट स्टीफेंस, आई एम श्योर इसको बताने की जरूरत नहीं है, एवरी वन ऑफ यू आर फेमिलियर विद द नेम, एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज व्हिच इज अ वुमेन्स कॉलेज। ये जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इनकी जो सीट्स होंगी वो 50% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स उस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्व्ड होंगी, और 50% जो होंगी वो अदर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। वो जो 50% जनरल कैटेगरी है उसमें और कोई रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। और जो 50% माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं, द सीट्स व्हिच आर कार्व्ड आउट फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी, उसका जो सिलेक्शन होगा वो 85% CUET स्कोर्स का वेटेज रखेंगे, एंड 15% क्राइटेरिया विल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज। In case of St. Stephen's, the clarity is already there. They will conduct an interview. जो सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, माता सुंदरी कॉलेज जो कि एक वुमेन्स कॉलेज है, इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज हो गया, या श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस में है, ये जो सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इसमें भी जो 50% सीट्स होंगी वो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, सिख कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी, और आपके पास श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है उन 50% सीट्स के लिए, और जो रिमेनिंग 50% सीट्स होंगी वो जनरल कैटेगरी के लिए फ्रॉम अदर कम्युनिटी विल बी ओपन। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो बहुत ही क्लियर हैं,
नथिंग इज गोइंग टू चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। एंड जो सीयूईटी का इंपैक्ट है रिजर्वेशन के ऊपर वो नहीं है। कोई भी जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है, जिसके भी माइंड में ये क्वेश्चन है, whoever is worried about will CUET bring any change to the reservation policies, no, that is not going to happen. We'll continue to bring such informative videos which helps you understand what is going to be the criteria, the process for admissions to the universities and colleges under CUET. If you have not subscribed the channel yet, it's time to do so. And also do not forget to press the bell icon so that you continue receiving this daily updates. साथ ही साथ जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, उसको भी लाइक करना ना भूलें।